So video आ गई कोई ना. So this is exactly my third video. So inspired by two previous videos, I decided कि I should continue this MCQ series जो कि specifically related है to the May 2023 attempt से लेके for all the CA intermediate students who have appeared for auditing assurance paper and the another paper is for EIS SM paper. So in the previous video, I want to share that many of the student or maybe some of the student commented upon the same video that please prepare MCQ for the auditing and assurance paper as well. So I decided that I should continue this series, and I also like to continue it because I am feeling the immense pleasure to continue it. Though I know that today is 30th of May and the paper is मतलब ऑलरेडी इतना टाइम पास हो चुका है, बट स्टिल जो भी मुझे रिस्पेक्टिव एमसीक्यू अभी तक भी आ रहा है उसको मैं कंटिन्यू ऑन करती हूँ. So again, I am discussing few more questions relating to the what exactly MCQ asked by ICI ने हमारे डियरेस्ट इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे थे इन एग्जामिनेशंस. सो अगेन आई वांट टू गिव वन क्लैरिफिकेशंस दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग दैट व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, as you all people know that I am also student. So being a student, as I have appeared for May 2023 examination, तो कौन से क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन में मुझे मिले एज अ स्टूडेंट और मैंने कौन से अटेंड किए, बिकॉज एमसीक्यूज तो सब सारे के सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सबके सेम आते हैं, बस ऊपर नीचे शफलिंग होती है. एज वी ऑल पीपल नो दैट एमसीक्यूज के ऊपर नीचे शफलिंग होती है. ओनली वी नो दैट शफलिंग. वन थिंग आई नीड टू चेक इज ऑडियो आ रही है या नहीं. ऑडियो आई थिंक सो आनी तो चाहिए, but still we need to check. So I think audio आ रही है because I have not muted that audio part. So audio आ रही है. So to continue that series, let's continue. Firstly, so this video I particularly made. So few of the students commented upon that please try to elaborate the auditing MCQs, because I have discussed in my first video only one MCQ which is relating to ऑडिट प्रोग्राम से एक एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया था कि दैट इज द सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर करके. तो वो एक एमसीक्यू आया था इन May 2023 इन पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में. वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था. उसके अलावा भी मुझे कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली याद है which has been asked by the institute, तो मैं उसको आज फर्दर डिस्कस ऑन करती हूँ. उसके अलावा मुझे one of really such nice comment which I have received on the comment section, किसी ने मैं उसको लेटर ऑन दिखाऊंगी. किसी ने बहुत सारे EIS के एमसीक्यूज पर्टिकुलरली उस कमेंट सेक्शन में लिखे थे जो कि वो एग्जामिनेशन में थे. एमसीक्यूज जो एग्जैक्टली क्वेश्चन थे उसके ऑप्शंस को लिखा था मेजरली, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है. किसी को क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है तो उस पर्टिकुलर कमेंट से भी बहुत सारे एमसीक्यूज मुझे भी याद आए हैं, तो वो भी मैं आपको शो करूंगी लेटर ऑन. तो फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई डोंट नो व्हाई, but I want to continue this MCQ series without any thought. I'd start the video, though video is not allowed at my home, and especially the public video is not at all allowed, but still this is the content related video. I will convince everyone soon, and somehow I am convincing everyone. So let's start the MCQ series which is relating to that particular question. So firstly I am discussing which chapter. I am discussing the chapter that is
Which chapter was exactly? That is, I think firstly I'm discussing. Yes, firstly I'm discussing that audit in an automated environment से एक MCQ आया था और वो MCQ क्या था मैं आपको PDF ओपन करके दिखाती हूँ so that it is understandable for all the student either जो अपीयर हुए उनके लिए भी जो अपीयर नहीं भी हुए उनके लिए भी so that सबको समझ आ जाए तो आई एम स्टार्ट फर्स्टली आई एम वेयर इज द एरो सो फर्स्टली आई ट्राई कि मैं ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को ओपन कर लूँ फर्स्टली दैट वन it is volume D according to me. So audit in an automated environment, is it visible? So firstly I am discussing the MCQ number 1 of my video number 3. करेक्ट तो वीडियो 3 ये कैमरा का है वीडियो 3 का MCQ फर्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ एंड आई ट्राई कि मैं सारे MCQs को समराइज कर लूँ बिकॉज मैं समराइज नहीं करती मैं एक एक बताती हूँ और वीडियो होगा तो दिस इज रॉन्ग थिंग विच आई think according to me that this is somehow wrong I have done in previous video. I try कि मैं ऐसा कर पाऊँ. I must summarize the things. So audit in an automated environment, I must say that this is the coverable chapter. दो थोड़े से पॉइंट्स लगते हैं ज्यादा बट ठीक है ये चैप्टर कंपैरेटिवली ठीक है. जो क्वेश्चन आया था दैट इज फ्रॉम काफी इजी क्वेश्चन आया था आई मस्ट से. मुझे लग रहा था कि कुछ डिटेल वाला क्वेश्चन आ जाएगा. So exactly क्वेश्चन कहाँ से आया था? Again it is audible now. Okay. एग्जैक्टली तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आया था मैं आपको ये दिखा रही हूँ. द क्वेश्चन फर्स्टली जो क्वेश्चन कहाँ से आया था वो मैं आपको बता रही हूँ अभी. तो ये जो चार चीजें होती है देर आर 4 थिंग्स करेक्ट. तो ये 4 चीजें जैसे कि जनरल आईटी कंट्रोल में क्या बोल रहा है. जनरल आईटी कंट्रोल ये पॉलिसी और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन और सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल. दे अप्लाई होते हैं मेनफ्रेम मिनीफ्रेम एंड यूजर एनवायरनमेंट. क्वेश्चन यहाँ से नहीं था. जनरल आईटी कंट्रोल जो कि मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को और सिक्योरिटी ऑफ डेटा को कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग. इसमें कंट्रोल कहाँ इंक्लूड होते हैं. व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे इनके कंट्रोल इंक्लूड होते हैं. तो इनके कंट्रोल इंक्लूड होते हैं डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन. नंबर 1 डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन. Number two is the program change. Number 3 is the access security. And number 4th one is the application system acquisition, development and maintenance business application. तो ये 4 चीजें हैं कि कौन कौन से मतलब जनरल आईटी कंट्रोल किन किन चीजों को कवर आउट करता है. करेक्ट.
तो अभी तक हमने क्या देखा दैट जनरल आईटी कंट्रोल किन चार चीजों को कवर करता है. तो दिस इज माय फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ वीडियो नंबर 3, दैट इज ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का एक एमसीक्यू आया था इन द एग्जामिनेशन में. ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाले चैप्टर से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज फ्रॉम देयर. And the question was like so the question is from the auditing and insurance wale chapter se. The question asked from the ICI. So ICI asked the question from the chapter that is from auditing and that is from the audit in an automated environment. And the question MCQs के options में थे data center and network operation. तो MCQs के options में क्या थे? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी और लास्ट वाला क्या था वो व्हाट वाज दैट? एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन. सो द लास्ट MCQ जो था दैट इज द एप्लीकेशन सिस्टम, वो वाला जो लास्ट अभी मैंने दिखाया था. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन क्या था? एमसीक्यूज तो ठीक है ये चारों थे, मतलब क्वेश्चन यही कैसे आया था. द क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन क्या था? तो जो क्वेश्चन में था कि ये कौन से ऑब्जेक्टिव की रिपोर्टिंग एफआरएफ के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर रहा है. तो इसमें अगर आपको पता है कि डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है एफआरएफ को लेके, प्रोग्राम चेंज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है एफआरएफ को लेके. द थर्ड वन, वेट the third MCQ, I mean मतलब अगर इफ वन पीपल नो अबाउट कि ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन के, देन प्रोग्राम चेंज के, देन द थर्ड वन इज एक्सेस सिक्योरिटी के और एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन जो लास्ट वाला MCQ उसके. इफ somebody know about that what are the objective, तो वो MCQ को एग्जैक्टली वैसे ही टिक कर सकते हैं. तो ये मुझे क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी लगा था बिकॉज व्हाइल रीडिंग दिस कंटेंट आई वाज थिंकिंग लाइक कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा. आई वाज थिंकिंग लाइक कि बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल में सोच रही थी कि जो क्वेश्चन है इट मे बी फ्रॉम इन सारी चीजों से अगर कोई क्वेश्चन आ गया और ऐसे करके चारों में है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. बट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था? To ensure that modified system continue to meet financial reporting objective. क्वेश्चन ये था अगर हमें मॉडिफाइड सिस्टम को, द क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली दिस एंड आई एग्जैक्टली नो दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन आ गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन द एग्जामिनेशन हॉल. whatever will be the result I don't know, but ये question के लिए I am very sure about this question, particularly this question. तो the examination में जो question पूछा था that अगर हमें ensure करना है that modified system continue to meet financial reporting objective, कि जब modified system होता है, जब किसी system में modification होता है ना, तो ताकि मीट कर पाए एफआरएफ को, मीट कर पाए उसके ऑब्जेक्टिव को, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? क्या उसका ऑप्शन डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन होगा, क्या प्रोग्राम चेंज होगा, क्या एक्सेस सिक्योरिटी होगा, या जो लास्ट वाला क्या है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, क्या ये होगा? तो हमें ये चारों ऑप्शन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे थे. देखो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, to ensure that production system are processed to meet the FRF objective. फर्स्ट वाला जो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन है वो बात कर रहा है अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में. सेकंड वाला बात कर रहा है मॉडिफाइड सिस्टम के बारे में. थर्ड वाला एक्सेस सिक्योरिटी बात कर रहा है एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज, इसके बारे में. एंड द फोर्थ वन इज सिस्टम आर डेवलप, कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंटेड. तो नथिंग इज कंफ्यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ यू हैव ऑलरेडी रीड इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस और द n नंबर ऑफ टाइम्स, बट एक ही बार में अगर ये क्लिक हो गया था
while reading the examination में भी learn हो गया था, I mean याद आ गया था कि हमने exactly क्या पढ़ा था. तो I think this question may be easy. अगर हमने इस chapter को अगर suppose skip किया था तो that is of course will not be in our hand. This question will not be in our hand. But अगर so I hope that this particular question is absolutely clear to you. अगर क्योंकि question exactly यही था and I'm not confused in this question because इसमें exactly 4 ऑप्शन दिए थे कि जो जनरल आईटी कंट्रोल के जो 4 एरिया जो कवरेज होते हैं वो क्या क्या थे. तो ऑप्शन तो सीधे सीधे आ गए थे, डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन. वो जो नेम है मुझे प्रॉपर याद नहीं रहता है. उसके बाद उसके जो एफआरएफ के ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ ये एक एफआरएफ की एग्जैक्टली मॉड्यूल से ये लाइन उठ के आ गई थी कि जो मॉडिफाइड सिस्टम के एफआरएफ को मीट करने के लिए क्या होता है. तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज द प्रोग्राम चेंज. उसके अलावा भी अगर सपोज कुछ और हो तो आई एम नॉट द पेपर चेकर, आई एम नथिंग लाइक, आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो प्रोग्राम चेंज होना चाहिए बिकॉज एग्जैक्टली मॉड्यूल से मैच कर रहा है. करेक्ट. So my first MCQ is over here. Now I want to jump upon or to proceed further to discuss about the second MCQ. So I want to discuss the another MCQ which has been asked by our institute, nobody else, because I am doing the sole course right now. So the second question which I want to discuss which is relating to पहले छोटे छोटे चैप्टर से डिस्कस कर रही हूँ मैं. तो जो सेकंड चैप्टर था that is I think I need to open the PDF again in order to discuss the second MCQ. तो जो second MCQ था that is from which chapter? That is from the audit sampling से मुझे एक MCQ डिस्कस करना है. करेक्ट. So the second MCQ which I am discussing hereby is from the audit sampling से दूसरा MCQ डिस्कस करें. The thing which I want to tell hereby is audit sampling से एक ही MCQ नहीं था, और भी थे. But I am discussing firstly in which I am very sure about that question. Question किधर गया हूँ? यहाँ से करेक्ट एंड करेक्ट भी था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो किन फेस में आती है, किन फेसेस में one thing which I want to discuss in between is I think एक MCQ था या करेक्ट एंड करेक्ट थे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे उसका आंसर आता था उस टाइम.
तो एक क्वेश्चन था, आइदर इट इज, या तो क्वेश्चन होगा या करेक्ट एंड करेक्ट था. लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ये करेक्ट एंड करेक्ट था या फिर एमसीक्यू था. द क्वेश्चन वाज लाइक कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है वो, आई थिंक करेक्ट एंड करेक्ट था कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो है क्या वो एक सिर्फ वन फेज में काम आते हैं, प्लानिंग टेस्टिंग या फिर प्लानिंग टेस्टिंग में, या फिर तीनों में, कंप्लीशन फेज में, या फिर तीनों में. तो आई थिंक ये करेक्ट एंड करेक्ट था कि एनालिटिकल जो प्रोसीजर है वो इन ऑल द फेसेस में काम आता है. तो उसका दिस इज अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट एंड करेक्ट ही था. उसके बाद एक और मुझे एक एमसीक्यू डिस्कस करना है, वो करेंटली मुझे मिल नहीं पा रहा है. दैट इज इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. उसका आंसर था, उसका आंसर वाज इंक्वायरी इंस्पेक्शन. आई थिंक वो टेस्टिंग वाला फेज लास्ट के किसी चैप्टर्स में था. इसमें नहीं दिख रहा है, सैम्पलिंग में भी नहीं दिख रहा है. ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्टार्टिंग से चेक करती हूँ मैं. एनालिटिकल प्रोसीजर, अगर सपोज इस चैप्टर में नहीं है और सैम्पलिंग वाले में भी नहीं है, तो लास्ट के कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में तो पॉसिबल नहीं है. ऑडिट सैम्पलिंग में दोबारा से देख लेते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि व्हाट आर द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. 6th chapter is audit in automated environment. 7 is this. And कुछ तो missing लग रहा है. I guess something is missing in this video. यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वो पीडीएफ मिल नहीं पा रहा है ड्यू टू सम एंड अदर रीजन. आई ट्राइड, मैं भी फिर से ट्राई करती हूँ कि अगर वो मिल जाए तो मैं वो दिखा दूँ. बट द क्वेश्चन में एग्जैक्टली बता देती हूँ. क्वेश्चन क्या था, जब आप अप्लाई करते हो, आई मीन कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो किस चैप्टर से था, कि कब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, जब आप इंक्वायरी अलोन करोगे या रीपरफॉर्मेंस या फिर ऐसा करके कुछ था. उसके कुछ कॉम्बिनेशंस बने हुए थे. उसका आंसर था इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन. जब आप इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन करोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. तब जो है सारी चीजें इफेक्टिव भी होगी और एफिशिएंट भी होगी. ये जो क्वेश्चन है शायद मैंने बुक से रीड आउट किया था, मुझे बुक तो अभी शायद नहीं मिल पाएगी.
तो द combination was inquiry. The correct answer of this particular MCQ was inquiry and inspection. अब जब भी कभी रीड करो या फिर वो किस पार्ट में है, वो फर्स्ट मॉड्यूल के किसी चैप्टर के पीछे है फर्स्ट, तो ये है या तो ऑडिट एविडेंस या तो चैप्टर 3 में भी हो सकता है आई थिंक. तो द आंसर वॉज कब आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट मिल सकता है. एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू इज इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. जब इंक्वायरी, बिकॉज हमें पता है इंक्वायरी जो है वो बहुत ज्यादा वैसी होती है और री परफॉर्मेंस, इसका इसका कोई ग्राफ बना हुआ है अप और डाउन एरो से इंक्वायरी के लिए और री परफॉर्मेंस के लिए पर्टिकुलर दे रखा है, और कॉम्बिनेशन के लिए जो बेस्ट सिलेक्शन दे रखा है वो है इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. So the correct answer of this particular MCQ, which is asked by ICI in May 2023, is, or it should be according to me, is inquiry plus inspection का combination हो. तो ये MCQ किधर है मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी, तो मैं लेटर ऑन अभी ट्राई करती हूँ अगर मिल जाए तो. उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs पे we shall proceed for next MCQ. Otherwise there may be some sort of wastage of time हो जाएगा इस at this particular moment. Okay, so I'm discussing the third MCQ specially relating to auditing and assurance paper. So currently I'm discussing the third MCQ which is asked from the audit report से I mean this is asked from the audit of bank. Audit of bank से बहुत ही normal question पूछा था. even ऑडिट ऑफ बैंक अगर किसी ने प्रिपेयर नहीं भी किया हो, बट स्टिल ये वाला एमसीक्यू तो आई थिंक आ गया होगा एज अ नॉर्मल, आई कैन से. सो फर्स्टली ऑडिट ऑफ बैंक आई थिंक मे नॉट बी इन माई पीडीएफ. लेट्स सी. So the third MCQ which I am discussing hereby is relating to audit of bank, जो कि यहाँ नहीं था according to me. So let's visit our favorite institute website. Correct? Nobody is favorite other than what's wrong. ओपन नहीं हो रहा है कि network connection was also proper, but still what's wrong.
आई विश चल जाए बस. Why this internet showing so slow? I don't know. My God. What can I? Still, it is showing the error. मुझे बस बैंक ऑडिट का पीडीएफ चाहिए ताकि मैं उसे सही से बता पाऊँ, बट ये तो हो ही नहीं रहा है. Again, it is not showing. Everything is absolutely fine, but still नेट नहीं चल रहा. सो करंटली मुझे वो बैंक ऑडिट वाला बताना तो है, बट एज नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो मेरे पास जो अवेलेबल है, तो आई शुड मूव ऑन दैट वन एमसीक्यू. एंड अगेन आई एम डिस्कसिंग दैट एमसीक्यू विच इज एग्जैक्टली आस्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. तो वो आई थिंक मेरे पास है, आई थिंक सो. तो फर्स्टली आई शुड डिस्कस दैट पार्ट. लेट मी चेक दैट वन कि मेरे पास है या नहीं. अगेन that is chapter number 4 audit question. तो chapter number 4 का ही है वो. so accordingly थर्ड एमसीक्यू जो बैंक ऑडिट से रिलेटेड था, वो मैं यहाँ भी डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, बट लेट्स सी अगर आगे है इंटरनेट चल जाता है somehow. मैं ट्राई करती हूँ वो चल जाए थोड़ी देर से ही सही. पहले हम दूसरा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं. So the next MCQ which I want to discuss hereby is, so one of the question is from ये जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है ना, तो आपको ये जो पर्टिकुलर रिस्क है, रिस्क से तो हम सब फैमिलियर ही है कि ऑडिट रिस्क क्या है. ऑडिट रिस्क पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी था. तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम कि जिससे ऑडिट रिस्क is equals to क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क.
we know that the risk of material misstatement consists of two components. First is inherent risk or control risk, एंड मल्टीप्लाई करते डिटेक्शन रिस्क तो फुल ऑडिट रिस्क बन जाता है. तो वी हैव ऑलरेडी नो दैट ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू. So the question was like, we all people know that audit risk is equals to risk of material misstatement multiplied by detection risk. As we also know that the ROMM is nothing but the risk of material misstatement consists of two components, which is inherent risk and control risk. और multiplied करते detection risk तो exactly audit risk मिल जाता है. Now the question जो कि examination में पूछा था कि बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल से, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास रिस्क है, मतलब ऑलरेडी मतलब रिस्क है जो इनहेरिट होके मिली है हमें, मतलब पहले से रिस्क एग्जिस्ट करती है बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल. तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन था दैट इज बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल से पहले जो रिस्क एग्जिस्ट करती है, तो दैट रिस्क इज नथिंग बट द इनहेरेंट रिस्क. तो एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस थे उसमें था इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, और एक और कोई ऑप्शन होगा वो मुझे नहीं याद है कि एक और एग्जैक्टली क्या ऑप्शन था. तो एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस थे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, और जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल से पहले कौन सी रिस्क होती है, तो बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल से पहले तो इनहेरेंट रिस्क होती है. एग्जैक्टली लाइन आपको मॉड्यूल में अभी मिल जाएगी. उसके बाद जो कंट्रोल रिस्क होती है तो वो कंट्रोल और एक कंट्रोल रिस्क होती है और एक डिटेक्शन रिस्क होती है. वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं. इसका जो मेन लाइन है वो ट्राई करती हूँ. दिस इज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टेंस of internal control in an entity, a particular transaction balance of account or a disclosure required to be made in the financial statement of an entity. In the financial statement of an entity have a chance of being misstated, and such a misstatement can be material, and this risk is known as inherent risk. So before the consideration of related control, before the consideration of any related control, before the consideration, तो ये जो exactly मैं आपको ये वाला जो लाइन बता रही हूँ that before the consideration of any related control, that उस एग्जाम की क्वेश्चन की लाइन थी, and the answer according to me of this particular is the inherent risk. इनहेरेंट रिस्क था. उसके बाद कंट्रोल रिस्क में क्या होता है, कंट्रोल रिस्क में इससे थोड़ा डिफरेंट होता है. कंट्रोल रिस्क होता है द रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. मिस स्टेटमेंट जो कि अकर हुई है, जो कि मटेरियल भी है इंडिविजुअली और एग्रीगेट करते हुए, विल नॉट बी, जो कि प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाई ऑन अ टाइमली बेसिस पे. तो मिस स्टेटमेंट जो कि मटेरियल भी है दैट कुड अकर इन एन असर्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस इंडिविजुअली और एग्रीगेट, बट दैट इज सेम विल नॉट बी प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाई है. तो ये तो हो जाता है हमारा कंट्रोल रिस्क. उसके बाद डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क जो होता है, डिटेक्शन रिस्क ये आ गया हमारा इनहेरेंट रिस्क. दोबारा से उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ. डिटेक्शन रिस्क आपको कहीं दिख रही है, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया था. ये एक साथ भी दे रखा है, ये तो एग्जांपल्स दे रखे हैं. डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट. जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे ऑडिटर ने ताकि वो रिस्क को कम कर पाए, तो एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक वो डिटेक्ट नहीं कर पाई मिस स्टेटमेंट को जो कि एग्जिस्ट करती थी, दैट कुड बी मटेरियल हो आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट. तो डिटेक्शन रिस्क ये हो गया.
तो द कंक्लूजन ऑफ दिस एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू मी व्हाट एग्जैक्टली द कंक्लूजन क्या है मेरे अकॉर्डिंग इसका, तो द एग्जामिनेशन में द क्वेश्चन हैज आस्क्ड दैट बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल, बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल की बात तो इनहेरेंट रिस्क ही करता है, बिकॉज कंट्रोल रिस्क में अलग है, डिटेक्शन रिस्क में अलग है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इनहेरेंट रिस्क। सो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 2023 में पूछा गया था। नाउ एक जो मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहती थी, I really want to discuss that question that is relating to the वो क्रॉप सीजन से रिलेटेड था, और आई थिंक ये क्रॉप सीजन वाला क्वेश्चन पिछले किसी अटेम्प्ट में आया है, आई मस्ट से आया है, because you all people know that I literally badly suffered in group 2 examination, so I don't want to say anything more about that, but previous किसी attempt में my sitting was there and of course that question already asked and this is the second time कि ये question आया है, and the question is crop season को लेके था, banking audit in banking में जो चैप्टर है ऑडिट ऑफ बैंक को लेके, तो उसमें क्रॉप सीजन से क्वेश्चन आया है कि जो लॉन्ग क्रॉप सीजन होते हैं, शॉर्ट क्रॉप सीजन है, तो जो शॉर्ट क्रॉप सीजन होते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, एक में 2 क्रॉप सीजन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, और फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीजन, ऐसे करके ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा ऑडिट ऑफ बैंक वाले चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा पूछा था कि शॉर्ट क्रॉप सीजन फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग क्रॉप सीजन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 2 1 1 2 1 2 ऐसे करके उसको शफल कर रखा था, बट हमें सिर्फ आवर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द करेक्ट आंसर, इधर उधर नहीं। तो आवर कंसंट्रेशन शुड बी लाइक कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उसका 2 क्रॉप सीजन होता है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन उसका 1 होता है, बिकॉज वो एक ही साल में 2 बार हो जाती है, और जो लॉन्ग है वो आई थिंक 1 बार होती है पूरे साल में, उस हिसाब से उसका कुछ लॉजिक बैठता है। तो 1 एमसीक्यू ये था। तो अभी तक हमने 4 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। एक जो था प्रोग्राम चेंज को लेके जो ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में था। सेकंड एमसीक्यू को भी मैं एग्जैक्टली पीडीएफ से मैच नहीं कर पाई, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है करंटली, बट द सेकंड एमसीक्यू जो कि इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट देता है, उसको लेके था। ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करते टाइम उसको लेके था। जो थर्ड एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया था, वो किसको लेके था, इनहेरेंट रिस्क को लेके था। तो फोर्थ एमसीक्यू विच आई हैव डिस्कस, वो किसको लेके था, वो रिलेटिंग था टू दी ऑडिट ऑफ बैंक के चैप्टर को लेके। उसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन है उसके क्रॉप सीजन को लेके था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में कितने क्रॉप सीजन लगते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में कितने क्रॉप सीजन होते हैं। उसके अलावा और भी मेरे पास एमसीक्यू है, स्टिल आई नो मच मोर एमसीक्यू। So the next MCQ which currently I want to discuss is एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहती थी कि एक और जो क्वेश्चन है which I want to discuss, वो एक ऑडिट सैम्पलिंग से क्वेश्चन था। ऑडिट सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली मुझे प्रॉपर नहीं बता पाऊंगी बिकॉज वो एग्जामिनेशन में मतलब आई गेस 2 MCQ ऐसे थे। एक जो एमसीक्यू था कुछ उसके ऑप्शंस में थे कि आपकी टॉलरेबल एरर को आप किसके अकॉर्डिंग मतलब देखते हो, एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग, एक्चुअल के अकॉर्डिंग। मुझे भी याद नहीं कि मैंने उसमें क्या लिखा था बिकॉज मुझे वो एग्जामिनेशन में भी प्रॉपर याद नहीं आ पा रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली ऑडिट सैम्पलिंग वाले चैप्टर में से है, और क्वेश्चन कुछ टॉलरेबल एरर के लिए बात कर रहा था। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज में थे वो एक्सपेक्टेड एरर, एक्चुअल एरर, डेविएशन मतलब टॉलरेबल डेविएशन को लेके, और फिर द ऑप्शन वाज लाइक द एक्चुअल
Oh God, what happened? Okay, recording चल रही है. So we did not worry so much. Okay. So the question क्या था? The question audit sampling को लेके था. क्वेश्चन के ऑप्शंस में थे एक्चुअल, एक्सपेक्टेड एरर, और उसके अलावा कुछ डेविएशन और एक्सपेक्टेड डेविएशन, मतलब कुछ टॉलरेबल डेविएशन के बारे में कुछ लेके था. तो मुझे उसका आंसर प्रॉपर नहीं आया और मुझे याद भी नहीं कि व्हाट एक्चुअली आई टेक इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो वो आप देख लेना, उसको लेके वो कोई क्वेश्चन था. उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, जो फैक्टर्स होते हैं ना कि ये बढ़ेगा, तो जैसे कि सैंपल साइज और ऐसे करके कुछ फैक्टर्स है, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स है, मैं बता देती. तो वहां से भी एक क्वेश्चन था ऑडिट सैंपल को लेके. तो वहां से भी एग्जैक्टली क्वेश्चन था, वो भी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि वो एक्सपेक्टेड कहाँ से हो सकता है. ऑडिट सैंपल का आई हैव पीडीएफ, तो मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद वी विल डिस्कस द केस बेस्ड सिनेरियो इन दिस वीडियो ओनली. ओके, तो पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद वी विल डिस्कस. और इन एडिशन टू ऑल दिस एमसीक्यू व्हिच आई हैव डिस्कस, उसके अलावा भी एक वो वेरिफिकेशन वाली ऑडिट प्रोग्राम वाले एमसीक्यू को भी इसी में जोड़ लेना. उसके अलावा इफ यू पीपल नो दैट व्हाट अदर एमसीक्यूज क्या है, तो आप मुझे बताना. और मुझे और भी एमसीक्यूज बताने थे जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आए थे, बट मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मैं कमेंट कैसे ओपन करूंगी, बट स्टिल आई ट्राई. So the next MCQ which I want to discuss is पहले ऑडिट सैम्पलिंग वाला. ऑडिट सैम्पलिंग है तो दो क्वेश्चन एग्जैक्टली थे अकॉर्डिंग टू मी. तो सैम्पलिंग से भी काफी अच्छा कवरेज था. सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, और वो एक मिस्टेक्स, नॉन सैम्पलिंग एरर जो ह्यूमन मिस्टेक, वो वाला पूरा पार्ट था. तो एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर इन दिस क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एमसीक्यू में थे सैम्पलिंग को लेके. तो एक क्वेश्चन कुछ फैक्टर्स को लेके था. अगर हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लार्जर द सैंपल साइज, एक ये होता है द मोर द ऑडिटर रिलाइंग, इसमें इसके हेडिंग्स में तो एक क्वेश्चन मैं आपको बोल सकती हूँ कि फैक्टर्स को लेके कुछ था. करेक्ट. इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हम we should move on to the case based scenario question, because discussing that question which I am even not sure, that is totally irrelevant for all the people. It just taking everybody's time. So यहाँ से भी क्वेश्चन था कि जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ टॉलरेबल डेविएशन को लेके क्वेश्चन था कि वो that should not be exceeded करके एक्चुअल, एक्सपेक्टेड, यहाँ से कुछ क्वेश्चन था. अगर किसी को वो पार्ट पूरा प्रॉपरली आता है तो आई थिंक वो क्वेश्चन आ जाएगा. ये वाला क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली इसलिए याद नहीं आ पा रहा है बिकॉज मैंने एग्जामिनेशन से थोड़े दिन पहले ये चैप्टर पढ़ा था, मतलब काफी टाइम पहले पढ़ा था. उसके बाद एग्जाम आ रहे थे तब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और एग्जाम से वन डे बिफोर मेरा ये चैप्टर तो नहीं हो पाया था. तो मुझे
इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। उसके बाद वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन and that is nothing but the chapter 1 question. एक और क्वेश्चन था दैट इज फ्रॉम दी ऑडिट रिपोर्ट से भी एक क्वेश्चन था, वो भी मुझे याद आ रहा है, बट करंटली आई एम डिस्कसिंग जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो करंटली उसी पे फोकस करते हैं जो हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं। तो करंटली आई एम डिस्कसिंग द केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन कहाँ से आया था, मैं आपको पहले ऑप्शन बताऊंगी, क्वेश्चन बाद में बताऊंगी उसके, क्योंकि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड था केस बेस्ड सिनेरियो का। तो यू मस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने केस बेस्ड सिनेरियो का क्वेश्चन क्यों लिखा, बिकॉज केस बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, और जैसे ही वो 2 मार्क्स दिखते हैं आधा दिमाग तो बस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बिकॉज 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट्स गोना बी 2 मार्क्स, मतलब इट्स ऑल अबाउट 2 मार्क्स। 2 मार्क्स गए तो गए, 2 मार्क्स में तो पास फेल का क्राइटेरिया हो जाता है। 2 मार्क्स के लिए तो बहुत ज्यादा वो लग जाता है, 1 मार्क्स में तो फिर भी इतना नहीं सोच पाते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन बता देती हूँ एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से था। So the question was from so currently we are discussing the another question जो कि केस बेस्ड सिनेरियो से था। तो केस बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चन एग्जैक्टली हो सकता है कोई बता पाए, बट केस बेस्ड का पूरा ऑलरेडी मतलब पूरे फर्स्ट पेपर तो पूरा क्वेश्चन से ही होता है, सेकंड पेपर में भी ऑलमोस्ट 50% या 75% उसी से फिल आउट होता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट जो क्वेश्चन था केस बेस्ड सिनेरियो को लेके वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, एक क्वेश्चन उसमें से ये था। तो जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को लेके था तो क्वेश्चन कुछ ऐसी, क्वेश्चन बहुत घुमा के बात कर रहा था मैं रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला जा रहा था कि क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे कि फैमिलियरिटी थ्रेट, एक ऑप्शन तो वो था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी फैमिलियरिटी थ्रेट को, मतलब आई मीन सारे क्वेश्चन को लेके। तो एक क्वेश्चन में एडवोकेसी, किसी भी हालत में एडवोकेसी तो ऑप्शन में नहीं था और नहीं उसका कोई आंसर था ऐसा कुछ। तो एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन में था फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है कि कुछ फैमिलियर रिलेशंस बन रहे हैं आपके क्लाइंट के साथ। एक में कुछ था कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि आपने कोई काम किया उसमें, एक सेल्फ इंटरेस्ट था। तो ऐसे करके 2-4 मतलब टोटल 4 ऑप्शंस थे। नाउ द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, पहले से ही करते हुए आ रहे हो। उसके बाद बोला जा रहा था कि क्लाइंट का जो कोई एम्प्लॉय था प्रीवियस वाला, वो पहले प्रीवियस में हमारी ऑडिटिंग टीम का कुछ था, और अब करंटली जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उसी का कोई किसी पोस्ट पे वो है। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी कि उसके बाद हमें फिर वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा था कोई ऑडिटर की हमें वैसे ही काम करना है, हमें कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देनी है, हमें वैसे ही काम करना है, हमें कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देनी है। 3 devices connected from my network and मेरा ही नेट नहीं चल रहा है सीरियसली। So the question was like कि वो हम कोई क्लाइंट मतलब करंटली हम इस पोजीशन में आ गए कि हम कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा जो ऑडिटिंग टीम का जो हेड है वो हमें मना कर रहा है कि ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा केस बेस्ड स्टडी में फ्रेम था। तो क्वेश्चन की एग्जैक्ट लाइनिंग्स यही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि इज इट रिलेटिंग टू फैमिलियरिटी थ्रेट और is it relating to the सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की वजह से कि कोई हमारा पुराना किसी सीनियर पोजीशंस में है,
या हमारे मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से करे या नहीं। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक मतलब केस बेस्ड तो क्वाइट कंफ्यूजिंग ही लगते हैं। और उसके बाद उसको इतना घुमा दिया, मतलब एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में किसी को लेके बात करते कि हाँ फैमिलियर रिलेशन से किसी के साथ, या फिर किसी की सीनियर पोजीशंस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें वो काम पुराना किया है अब उसको नहीं, मतलब तीनों का मुझे कॉम्बो लग रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू गेट कि एग्जैक्टली क्या था, बट दिस वॉज वन ऑफ द MCQ क्वेश्चन इन May 2023 एग्जामिनेशन। एंड वन थिंग दैट इज इट इज द केस बेस्ड सिनेरियो 2 मार्कर का था। और whatever is your answer, please comment in the comment section that what is exactly your answer. So I also come to know, मैं तो खुद से भूल गई कि what was my answer. Seriously, मतलब I don't know what was my answer. Next thing that is relating to the audit report वाला question I want to discuss. Okay, मैं आपको एक बार वो PDF दिखा देती हूँ because PDF तो है. So the question मुझे तो इवन आफ्टर मतलब आफ्टर एग्जामिनेशन में घर पे आके चेक भी कर रही थी कि आंसर क्या होगा, बट तो भी मुझे उसका प्रॉपर नहीं पता चला। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या होता है, विच अगर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म इट्स पार्टनर एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। तो अगर हमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो रहा है तो दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, खुद के इंटरेस्ट के लिए। तो एग्जाम्पल इंक्लूड डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, लोन एंड गारंटी टू एंड फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस पे अगर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। तो सबका मिक्सचर, मतलब आपको लग रहा है कि क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप सारा इसमें आ रहा हो तो अभी सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट हो क्लाइंट के साथ, किसी कॉन्टिजेंट फी फॉर द ऑडिट, लाइक इन केस ऑफ एन ऑडिट फॉर्म अगर सबका मिक्सचर है तो हो सकता है इसका आंसर सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, आई डोंट नो। Like in a case, an audit firm unduly relies on fees from the client and it may result in threat to self-interest of auditor and he may not work objectively for the fear of losing the client. तो इस वजह से तो इसका आंसर मे बी सेल्फ इंटरेस्ट हो, मे बी इट्स मे बी पॉसिबल। उसके बाद the next thing is self review में क्या होता है, which occur when during a audit of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement. Non-audit service include any professional service provided to an entity by an auditor other than the audit of review of financial statement. This include management service, internal auditor advisory and all when a member of audit team was previously a director. मुझे ये वाला ऑप्शन भी इस वजह से लगा था because when a member of the audit team was previously a director, या तो पहले जो मेंबर है ऑडिटिंग टीम का अभी वो प्रीवियसली क्या है, वो प्रीवियसली डायरेक्टर या तो वो कोई डायरेक्टर था या सीनियर एम्प्लॉय था क्लाइंट का। मतलब अभी करेंटली हमारा जो ऑडिट टीम का है वो प्रीवियसली क्या था, डायरेक्टर था, सीनियर एम्प्लॉय था क्लाइंट का, समझ रहे हो। मतलब करेंटली इसमें भी ऐसा ही कुछ था कि हमारा जो ऑडिटिंग टीम का हेड है वो हमें मना कर रहा है कि ऐसा मत करो। तो अगेन उस लाइन और इस लाइन में मैं फिर से कोलाइड हो गया। तो उसके बाद instance such a threat come plain when auditor having recently been a director, senior officer of the company and when auditor perform service that are themselves subject matter of audit. तो सेल्फ रिव्यू भी मुझे लगा। उसके बाद एडवोकेसी तो नहीं था, उसमें एडवोकेसी जैसा कुछ नहीं था। उसके अलावा familiarity भी लगा मुझे उसमें, are self evident and occur when auditor from relationship with the client when they end up being too sympathetic to the client interest. This can occur in many ways. Close relative of the audit team working in a senior position in the client's company, former partner of the audit firm being a director of senior employee of the client, long association between the specific auditor and their specific client counterparts and acceptance. तो ये तीन ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्टली लग गए थे। उसके अलावा एक इंटिमिडेशन में भी शायद मुझे ऐसा लगा थोड़ा बहुत कि इंटिमिडेशन में भी कंफ्यूजन हो रही है, बिकॉज विच अकर व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर फ्रॉम एक्टिंग विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, बेसिकली दिस हैपन थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ
accounting principle So this question is quite confusing. So whatever your answer, please comment in the comment section कि इसका answer exactly क्या होगा. So the next question. The next question is from the audit reporting वाले chapter से था. This video gonna too long. I think I need. Where is my bottle? Okay, so give me 2 minutes break. So the next question is from the audit reporting वाले chapter से. So the next question is from the auditing and assurance. Audit report वाले chapter से था. And वो उसमें कुछ ऐसा था कि that the same thing is not the significant matter नहीं, because we all people know that key audit matters are those matter that is significant in the audit of financial statement. तो वो कुछ significant तो नहीं था. उसके अलावा one thing in the question is कि वो that the same is not the part of the financial statement. So that the same either is from the either या तो question होगा from so the question is either या तो the question must be from the EOM से होना चाहिए emphasis of other matter para
या फिर अदर मैटर पे या तो EOM से या फिर OM से। तो दोनों जो है दैट द सेम इज कवर अंडर 706 yes 706 में, बिकॉज 701 इज द की ऑडिट मैटर पैरा। तो KM से तो नहीं होना चाहिए, बट द क्वेश्चन की लाइनिंग्स के अकॉर्डिंग दैट कुछ फायर अकर हुई है एंड तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी लाइनिंग्स थी कि फायर अगर हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, EOM आई मीन सॉरी दैट द सेम इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा कुछ पूछा था एंड तो इसका आंसर 706 में से कुछ होना चाहिए कि या तो EOM होना चाहिए या OM। तीन ऑप्शन तो एग्जैक्टली ये थे। एक ऑप्शन में था कि ऑडिट मैटर, अब कुछ ऐसा बता रखा था कि एक कुछ मशीनरी या कुछ ऐसी है वो फायर से जल गई। तो द क्वेश्चन इज समहाउ कंफ्यूजिंग, क्या वो इवेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बट उसके कुछ लाइनिंग्स के बाद ऐसा दे रखा था लाइक कि the same is not forming the part of financial statement। उसके अलावा लेटर ऑन डिस्क्लोजर्स के बाद कुछ की थी। तो द ऑप्शंस में क्या थे, इसका आंसर वॉट एवर यू हैव टेक ऑन इन द एग्जामिनेशन प्लीज कमेंट इन द बिलो, प्लीज मुझे भी जानना है इसका आंसर क्या एग्जैक्टली। द ऑप्शन में तीन ऑप्शन में ये था, एक था की ऑडिट मैटर, द सेकंड ऑप्शन इज emphasis of matter para, the third option is other matter para। तीन ऑप्शन ये थे, एक और कोई होगा आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेट अस ट्राई कि वो ऑप्शन क्या था, हम तीनों को रीड आउट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग की ऑडिट मैटर तो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो दो ऑप्शन है उसमें से होना चाहिए। आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। Whatever happened, that has already happened. So, nothing in our hand. So, firstly, where is 706? Correct. So, firstly, what are the key audit matter para? Key audit matter para क्या होते हैं? What are the key audit matter para? Key audit matter para में क्या होते हैं? For audit, when the auditor is otherwise required by law, regulation, or decide to communicate key audit matter in this report. These are the complete sets of a general purpose financial statement of listed entities, and the auditor shall communicate key audit matter in the auditor's report in accordance with this। ये तो ठीक है, इसमें सच कुछ लिखा नहीं है कि ऑडिट मैटर पैरा। तो की ऑडिट मैटर पैरा तो यही होता है दैट विच आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके। सो यहाँ पे थोड़ा बेसिक डिफरेंस दे रखा है, इसको रीड ऑन कर लेते हैं। जो एम्फेसिस, जो EOM होता है ना, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, उसमें क्या होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा इज अ पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि EOM जो है वो तो इंक्लूड होता है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड इट रेफर्स टू मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज, के अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट भी होते हैं, डिस्क्लोज भी होते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
That in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement. But it is fundamental to the users कि वो उसे understand करें. Other matter para is a para included in the auditor's report. तो EOM जो है वो include होता है in the auditor की report में. जो EOM होता है वो जो emphasis of matter para है वो include होता है auditor की report में. और other matter para is a para included in the auditor's report. It refers to the matter other than those presented and disclosed in the financial statement, and that in the auditor's judgment is relevant to the user's understanding of the auditor's responsibility or to the auditor's report. इसमें डिफरेंस तो समझ ही नहीं आया. डेफिनेशन EOM की is a matter, is a para, is a paragraph included in the auditor's report. Is a para included in the auditor's report. I think कुछ तो error है यहाँ. It refers to a matter appropriately presented. Matter other than those presented and disclosed in the. यहाँ तो difference समझ आ रहा है. That in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental. That in the auditor's judgment is relevant to the user's understanding of the auditor's responsibility relating to that. तो इनमें से इसमें मुझे confusion है कि इसका exactly answer क्या था. So one thing is कि अगेन एक क्वेश्चन जो है इन तीनों को लेके था, इसमें भी आई गेस केस पे स्टडी का तो आई थिंक क्वेश्चन नहीं था, बट कोई क्वेश्चन था इन तीनों को लेके. 3 MCQs में ये थे क्वेश्चन आई थिंक केस बेस्ड स्टडीज में से ही था. इस वजह से मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा था कि फायर लग गई है, पहले डिस्क्लोज नहीं किया है, विच इज नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. ये हमने जो पढ़ा है ये ऑडिटर रिपोर्ट का पार्ट है, बट आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है. तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है. और हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी जरूरी है ऑफ कोर्स, बिकॉज एट सम और अदर पॉइंट अगर हम स्टिल वी आर मतलब कहीं ना कहीं अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंसेप्ट्स में ही दिक्कत है, बिकॉज अदरवाइज हमें आ जाना चाहिए. अगर जो क्वेश्चन हमें आ रहा है वो एग्जैक्टली आ रहा है, जो क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें स्टिल हो रहे हैं, हाँ तुक्का लग जाए तो अलग बात है, बट स्टिल हम स्टिल कंफ्यूज हो ही रहे हैं, यानी कि बिकॉज वी आर नॉट श्योर फॉर दैट क्वेश्चंस. सो दिस इज तो मस्ट प्रिपेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द कंसेप्ट्स. कुछ चैप्टर्स मुझे प्रॉपर्ली नहीं भी आते थे, इस वजह से भी मुझे कुछ कंफ्यूजन्स तो हुई है. जो चैप्टर्स मुझे थोड़े अच्छे से आते थे उसमें मैं थोड़ी ज़्यादा श्योर थी, तो मेरा लेवल ऑफ एश्योरेंस उन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा था. उसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक फ्रॉड से एक क्वेश्चन था, वो भी मैं बताती हूँ, बट इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्ग और मुझे बाहर से आवाज आ रही है. ओपन द डोर प्लीज. सो दैट्स व्हाई थोड़ी प्रॉब्लम उस वजह से भी हो रही है, क्या कर सकते हैं. बट उसके अलावा बट काम मुझसे कुछ नहीं है, बट स्टिल एक क्वेश्चन फ्रॉड से है. फ्रॉड्स के कुछ बेसिक पार्ट से था, उसमें कुछ पूछा था, बट आई थिंक एक डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन के अंदर रिलायबिलिटी को लेके क्वेश्चन होता है, वो एनालिटिकल में मिलेगा आपको. रिलायबिलिटी को लेके क्वेश्चन होता है, 3-4 फैक्टर्स होते हैं, डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन,
सोर्स अकाउंट, ऐसे करके 4 पॉइंट है। एक क्वेश्चन उसमें से था, एक क्वेश्चन फ्रॉड में से था, तो मैं किसी और के साथ इसे कंबाइन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, एंड यस, so bye for today, and if you like the video, then if you dislike the video, then please click the dislike button, and if you like, then share. Don't share, just like the video. That's it, that is enough for me. Sharing video is somehow, I don't know. So it is over for today, it is enough for today. So bye from my side. I must it is enough for today. Okay, so bye, and comment in the comment section whatever your answer is, what exactly you feel that this one is the correct option, whatever MCQ I try to discuss, whether it is the inherent risk, whether it is related to the banking chapter MCQ, short duration crop, long duration crop seasons को लेके, either it is from the program change को लेके, modification वाले point को लेके, whether it is relating to the case based scenarios, what are the threat to independence, उसको लेके आपको जो question लगा है, and उसके अलावा और उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे ऑडिट रिपोर्ट को लेके कि उसका एग्जैक्टली क्या आंसर था, आई थिंक वो भी केस बेस्ड सिनेरियो उसमें से ही था, आई थिंक। एंड उसके अलावा ऑडिट प्रोग्राम वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑडिट प्रोग्राम वाला एमसीक्यूज। तो दिस इज पर्टिकुलरली ये ऑडिटिंग के लिए ही वीडियो थी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस को लेके, करेक्ट। और उसके अलावा बस, तो बाय फॉर टुडे। नाउ दिस गोना बी सो लॉन्ग, उसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। सो और भी एमसीक्यूज है स्टिल, आइदर फ्रॉम अदर सब्जेक्ट और फ्रॉम दिस। सो मुझे 2 कमेंट्स बताने थे विच आई रियली फाउंड वेरी हेल्पफुल टू मी, दैट इज वो था एक तो एमसीक्यूज EIS के MCQs को लेके था, एंड वन MCQs दैट प्लीज प्रिपेयर फॉर द ऑडिट को लेके MCQs बनाओ, बट मेरा नेट नहीं चल रहा है, ट्राइड वंस अगेन आई एम ट्राइंग, सो आई मस्ट चेक कि वो फिर से ऐसा हो पा रहा है या नहीं, बिकॉज मेरा नेटवर्क को क्या हो गया पता नहीं आज। आई विश चल जाए। To comment which I want to show hereby is, which may be helpful for all the people, I think. Much of your time, and if you like the video, then you can like it. If you dislike also, then you can also dislike the video. I think it's worth one second. I think you should consider heat treatment. Huh? No, I can't go on that.
teeth straightening has many health benefits. It helps your oral health and adds to your beautiful smile. And oh no, braces? So I must thank this guy that ये सारे जो MCQs थे ये exactly examination में थे Anything about traditional braces. and They have Invisalign aligners. They're virtually तो I invisible, firstly comfortable, thanks and do not this affect your one hairstyle. this boy Advanced technology कि ये for सारे advanced क्वेश्चन भी training थे methods. ये particularly EIS से related है तो मैंने अभी तक वीडियो तो नहीं बनाई है but these are also either MCQ थे और या फिर उससे related content था तो ये MCQ थे उसके अलावा Please share audit MCQ. This was I also again thank this guy also. That please share the audit MCQ. So I try my best to share my MCQs. So whatever your MCQ, you can also discuss here. So thank you and bye. Stay for this overdue. There are more MCQ in my brain again, just like before, just like the previous video. जैसे कि मैंने already